Very good evening, everyone. Namo Namaha. Susayam Kalaha. We're going to start with the lecture, but before that, we'll discuss the homework. I hope you remember that the homework was you have to write down the translation of lesson number 1 or just the gist of the story from lesson number 1, which is Sushtu Gruhitah Chauraha. So I hope you have done the homework because you are very good, honest, and smart students. So who would like to read the answer, the gist of the story or the translation of the story? As it is translation नहीं चाहिए, जो भी आपको story से समझा बस English में आपको बताना है. Okay, let's give chance to. Okay, many of you have done. Very good. Yes, Arya from Saidham. Hello. Yes, Arya. Yes, miss. Oh, Can I please say? read your answer. Yes. Birbal was a very clever and witty minister in Emperor Akbar's court. There are several famous accounts of his cleverness. One among them is the history. The thief is well caught. This story revolves around Birbal's cleverness correctly identifying the thief. When Dev Datta realized his money bag was missing, he suspected that one of the six servants would be the culprit. To catch the thief, he took Birbal's help. Birbal used his understanding of human psychology that the real thief would always do something to conceal his uh, conceal theft. Knowing this, Birbal gave the servants a stick each of the same length, saying that those sticks would grow longer the next day. The real thief fell for this ploy and kept his sticks so no one would know that he was the thief. However, the next day the thief's stick was shorter than the others. Birbal easily identified the thief due to the short stick. Thus, Birbal used his cleverness and understanding of human behavior to catch the thief. Very good. Very nicely explained the story. Thank you so much, Arya. तो जैसे कि आपने देखा कि आर्या ने सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं लिखा है, उसने बीच बीच में कनेक्टिंग लाइंस भी यूज किए हैं. बिरबल का क्लेवरनेस वहां पे उसने मेंशन किया है. तो स्टोरी जब भी हम इंग्लिश में लिखेंगे एज अ इंग्लिश आंसर, तो हमें खुद के ओन वर्ड्स में लिखना है, ना कि सिर्फ ट्रांसलेशन लिखना है. So very nicely explained, Arya. Let's give chance to one more student. And yes, Harshit from Ghatkopar. Yes, ma'am. Read your answer. Start. Yes. Once there was a certain rich man named Devdatta. Once his money bag was missing. There were 6 servants in his house. It was his option that one among them would surely be the thief. He asked for Birbal's help in order to catch the thief. Birbal said, "Oh friend, send all your servants to my house today in the evening." As decided, all servants came to Birbal's house. Birbal had brought sticks of same length for all of them in advance. He said to a servant, "Oh, see, these are magical sticks. Taking stick among those, you all go back to Devdatta's house and come again tomorrow morning. Stick of one who has stolen money bag will become longer by a finger. At night, except one, all the servants slept peacefully. He thought, tomorrow morning my theft will be revealed, so I shall cut my sticks, but by a finger length now itself." Thinking that he did he cut the stick and slept peacefully.
The next day, just by looking at the short stick, Birbal correctly recognized and caught the thief. The guilty servant fell at Birbal's feet and accepted his mistake and returned the money back. Very good. That's nice, Harshit. तो हर्षित का आंसर थोड़ा आर्या से अलग था बहुत ही. हर्षित ने पूरी तरह से स्टोरी का ईच एंड एवरी जो यू कैन से डायरेक्ट स्पीच है उसको भी उसने ट्रांसलेट किया है. वेरी गुड अगेन. ये पार्ट भी हम यूज करेंगे बट विद दैट हमें लिंकिंग लाइंस, उसका जिस्ट, क्या क्या मोरल ऑफ द स्टोरी है, सब एक्सप्लेन करना है एज पर द क्वेश्चन. Okay, so let's move ahead. We'll understand some question answers based on first lesson, Sushtu Gruhitah Chaurah. So the first question is Uchitam Pariyayam Chinuta. This is a textual question. Okay, so first is Kasya Dhanasyutah Luktah, and also you have 4 options. तो इसीलिए पैरा यहाँ पे नहीं दिया हुआ है. एग्जाम में there will be paragraph and also the question, but question के लिए options नहीं रहेंगे एग्जाम में. Para will be given and you have to answer the question in full sentence. पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत. So you can quickly give me the answer in chat box, like option number 1, a, e, e, जो भी आपको correct लग रहा है. So कस्य धनस्यूतः लुप्तः, whose money bag was missing or stolen. Okay. Yes, many of you are giving correct answer. That is, the answer is Devadattasya. The first one, the option O. Okay, we'll move ahead. Second question is Gruhe Kati Bhrutyaha Asan. Pancha, Sapta, Shad or Ekah. Wow, correct answer. The answer is E. Option number 3, that is Shad. There were 6 servants in house. तो देखो ये सब जो क्वेश्चन है अगर पैराग्राफ दिया हुआ है तो कितना इजी है फाइंड आउट करने के लिए, एंड यू विल इजीली स्कोर फुल मार्क्स. देन वी हैव थर्ड क्वेश्चन वीरबलः कस्य मित्रम. तो कुछ लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर 2, कुछ लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर 3. क्विकली एक बार फिर से जरा रीड करना क्वेश्चन. वीरबलः कस्य मित्रम, बीरबल किसका फ्रेंड था. यस, नाउ यू हैव स्पॉटेड इट करेक्टली. द आंसर इज धनिकस्य. सेकंड ऑप्शन, दैट इज आ. थर्ड आंसर नहीं होगा बिकॉज यष्टिका मीन्स टिक. चलो लेट्स मूव अहेड. वी हैव अ फोर्थ क्वेश्चन. श्वः मम चौर्यं प्रकटितं भवेत् इति चिंता कस्य चित्ते जायते. Who is worried that my theft will reveal tomorrow? So we have options as Dasasya, then Veerabalasya, Dhanikasya and Rupasya. Yes, all of you have given correct answer. Very good. The answer is Dasasya. So students, Bhrutya के लिए समानार्थ भी हो सकता है Dasasya. And one servant was worried about his own mistake. So इसीलिए answer will be Dasasya. Dasa means servant, Bhrutya. Okay. Okay, quickly now mark all these answers in your textbook or just write down in your notebook. Within 1 or 2 minutes, quickly write down, note one word ka answer in your notebook or quickly mark it on your textbook. I hope the writing part is done. You have still 5 to 10 seconds more. First answer is Devadattasya Dhanasyutah Luktah. Exam mein you have to write down full sentence. Devadattasya Dhanasyutah Luktah. Gruhe Shad Bhrutyaha Asan. Veerabalah Dhanikasya Mitram.
श्वः मम चौर्यं प्रकटितं भवेत् इति चिन्ता दासस्य चित्ते जायते. You don't have to write down question and answer in homework. Just write down it now. Save your time. Okay, so I hope 4 answers लिख के हो गए. Let's move ahead. We have second question as कह कम वदति. कह means who, कम means to whom, and वदति means said. So who said to whom? ऐसा क्वेश्चन है, किसने किससे कहा. Of course paragraph will be there in exam, but अभी आपको स्टोरी को याद करना है, अंडरस्टैंड करना है एंड आंसर देना है. फर्स्ट इज पश्यन्तु एताः माया यष्टिकाः. चलो, आई वांट ओरल आंसर्स दिस टाइम. इंग्लिश में आंसर नहीं चाहिए, आंसर शुड बी इन संस्कृत. पश्यन्तु एताः माया यष्टिकाः. Look at these. These are magical sticks. Who said to whom? Yes, Riya from Saidam. मिस बीरबलः दासस्य वदति. दासस्य वदति. नहीं, पूरा क्या होगा? किसने किससे कहा? बीरबलः दासस्य वदति. ओके, बीरबलः दासस्य वदति. ओके, थैंक यू. तो रिया ने अपना आंसर दे दिया है वीरबलः. बिरबल नहीं रिया, वीरबलः. वीरबलः दासस्य वदति. ओके, और किसी को कोई और आंसर देना है? डिफरेंट होना चाहिए, रिया से डिफरेंट आंसर होना चाहिए. अगर डिफरेंट आंसर है तो ही रेज योर हैंड. ओके, लेट्स गिव चांस टू माधवी फ्रॉम डीएन नगर. Yes, miss. वीरबलः भृत्यान् वदति. वीरबलः, सेकंड वर्ड इज पार्डन. भृत्यान् वदति. ओके, वीरबलः भृत्यान् वदति. ओके, तो और एक आंसर हमें मिल गया, बट मीनिंग जरा बताओगे मुझे, भृत्यान् का मीनिंग क्या होगा? यस माधवी. Yes, miss. भृत्य का मीनिंग क्या होता है? Servant. वेरी गुड, सर्वेंट. थैंक यू सो मच माधवी. वेरी गुड. तो करेक्ट आंसर दिया है माधवी ने. भृत्यान मीन्स सर्वेंट. तो माधवी का आंसर परफेक्ट है. वीरबलः भृत्यान वदति. अभी यहाँ पे भृत्यान क्यों हुआ है? सी, ऑब्जर्व द फर्स्ट आंसर. क्योंकि बहुत सारे सर्वेंट्स है, तो हमें द्वितीय विभक्ति यूज तो करनी है, बट एट अ सेम टाइम हमें बहुवचन भी यूज करना है, इसीलिए द वर्ड इज भृत्यान. सेकेंड वन इज अगेन सेम एंड बहुत ही सिंपल सा है. मित्र अद्य सायंकाले तव सर्वान् भृत्यान् मम गृहं प्रेषय. सेंड ऑल योर सर्वेंट्स टू माय हाउस. ऐसा ऑफकोर्स हमें पता है वीरबल ने ही कहा है, बट दिस टाइम टू धनिकम और देवदत्तम. तो देखो, धनिका एंड देवदत्त ओनली वन पर्सन है, सिंगुलर है, इसीलिए वहां पे अनुस्वार यूज किया है. अगर प्लूरल है एंड मैस्कुलाइन है तो हमें एंडिंग में न ऐड करना है, और अगर प्लूरल है एंड सिंगुलर है तो हमें ऊपर अनुस्वार ऐड करना है. तो हमेशा याद रखना, कह का आंसर मतलब जो बात कर रहा है वो प्रथमा विभक्ति में होता है, लाइक देवः और माला और वनम. एंड कम का आंसर इज ऑलवेज इन द्वितीय विभक्ति एज पर द जेंडर एंड वचन. तो इसीलिए भृत्यान एंड धनिकम दोनों भी द्वितीय विभक्ति में है, सिर्फ वहां पे वचन का डिफरेंस है. भृत्यान इज बहुवचन प्लूरल एंड धनिकम इज सिंगुलर. So quickly write down these answers in your notebook. It is very important. और भृत्यान वाला जो क्वेश्चन है, वीरबलः भृत्यान वदति, उसको स्टार मार्क करना. एग्जाम में ये हमेशा पूछा जाता है, यूनिट टेस्ट एज वेल एज सेमेस्टर में. प्लीज जस्ट डोंट टेक अ स्क्रीनशॉट, राइट इट इन योर नोटबुक. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कह कम वदति. हर्षित
If you are using the word sevaka instead of bhrutya, then you have to write down as sevakan vadati. Sevakan vadati. Veerabalah sevakan vadati or Veerabalah bhrutyan vadati. Pashyantu etaha maya yashtikaha. It is said by Veerabalah to Bhrutya. So Veerabalah Bhrutyan vadati or Veerabalah sevakan vadati. And the second one is Veerabalah dhanikam or Devadattam vadati. Chalo, last 2 to 3 seconds for writing. Quickly complete it. कि अच्छे से अभी लिख लो. लेक्चर में तो आपका एक्सरसाइज आपके नोटबुक में रेडी हो जाएगा विद आंसर्स. बस एक बार रिवाइज कर दोगे तो टेस्ट इजी होगा. सब यही क्वेश्चंस आपको टेस्ट में आएंगे एंड पैरा विल बी गिवन, सो डोंट वरी. In each and every exam, unit test हो या semester हो, till 10th standard, there will be a para for lessons as well as poems. Okay, let's move ahead. We have a third question on the screen. Melanam kuruta. Melanam kuruta. Left side में you have विशेषणस, adjectives, and right side में you have विशेषम. Quickly read कर लो and I want oral answers first. Then we'll write it down. Always remember विशेषण विशेष्य को मैंने सिखाते वक्त भी आपको बोला था कि जब भी हम इसको मैच करते हैं तो फर्स्ट थिंग ये पैरा में दोनों भी वर्ड्स एकदम साइड साइड में ही रहते हैं. They are twins, like a twins. In fact, उनका ending जो है similar होता है 70% of a time. तो अभी वो जो 30% है वो हमें अभी नहीं सीखना है, धीरे धीरे हम सेमेस्टर 2 में सीखेंगे. तो 70% of a time the endings are similar in adjective and noun in Sanskrit. Also, you have to understand the meaning of visheshan and visheshyas. Chalo, so many of you are raising hands. Let's give chance to Yashvi. Yashvi from Vikhroli. Ma'am. Yes, Yashvi. You have to tell all the answers. No? Okay, ma'am. Samanotayah is yashtikaha. Correct. Sarvan Bhrutyan. Very good. Luptah Dhansutah. And the last one is? Grahitah Chaurah. Very good. Thank you so much, Yashvi. Welcome, ma'am. So Yashvi ने correct answers बताए हमें. Now I want one volunteer who will tell the meaning of these words. उनकी जोड़ी जोड़ी जो अभी हमने मैच की है, पेयर क्रिएट की है, उसका मीनिंग चाहिए मुझे, each and every pair का. So who will going to tell that? Yes, Tanvi from DN Nagar. Hello, ma'am. Yes. Yes. Samanonnataya yashtikaha means equal length sticks. Very good. Sticks of a same length. Nice. Yes. And second? Sarvan Bhrutyan means all servants. Very nice. What is the meaning of third one? Luptah Dhanasyutah means stolen money bag. Very good. And the fourth one? And Gruhitah Chaurah means the thief was caught. Very good. Fantastic. So Tanvi ने perfect answers दिए. Very good, Tanvi. Keep it up. तो हमारे आंसर्स कुछ इस तरह से दिखेंगे. So quickly write it down in your notebook. और if you are just क्या कहेंगे, हम मार्क कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक पे मार्क कर लो. बहुत सिंपल सा है. लेफ्ट साइड इज सेम. Visheshanam, always we have to copy the first column as it is in exam also, and the right column will be our answers.
तो समानोन्नतयः यष्टिकाः सर्वान् भृत्यान् लुप्तः धनस्यूतः and गृहीतः चौरः. Students also observe the endings are same. समानोन्नतयः indicates बहुवचन, also यष्टिकाः indicates बहुवचन. सर्वान् भृत्यान् आन ending same है. लुप्तः धनस्यूतः अह ending same है. and गृहीतः चौरः also अह ending same है. मीनिंग भी दोनों का मैच हो रहा है. मीनिंगफुल पेयर्स हमें बनाने रहते हैं इन विशेषण एंड विशेष्य. क्विकली राइट इट डाउन इन 5 to 10 seconds. The same question is there in your textual exercise Bhasha Abhyasah. You can mark the answers there itself. Okay, I hope you are done with writing of Milanam Kuruta. Let's move ahead. We have a next question, very important question. विरुद्धार्थक शब्दान युग्मम चिनुत लिखत च. तो ऐसा एक डायग्राम जो है एग्जाम में आ सकता है. एंड ये डायग्राम को पहले अंडरस्टैंड करना. देयर आर टोटल 6 pairs of opposite words. विरुद्धार्थ means opposite antonyms. युग्म means pair, जोड़िया. चिनुत means first find out that pairs. वो सब जोड़िया जो है pairs जो आपको पहले find out करनी है. एंड देन लिखत, write it down. सो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है पहले ओरल आंसर्स नहीं, पहले आप लिखो. ट्राई टू फाइंड आउट दैट 6 pairs, अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड देन एक एक आंसर मुझे ओरली देना है. एक पेयर बताना है, उसका मीनिंग बताना है. सेकंड पेयर, देन मीनिंग. थर्ड अपोजिट वर्ड्स एंड देन मीनिंग. सो एक हिंट तो मैंने दे दिया है. 6 यहाँ पे जो है अपोजिट वर्ड्स रहेंगे. 6 pairs of opposite words are there in this particular diagram. किसी को मीनिंग नहीं आ रहा है तो वो जरा अभी सोचो कि ये लेसन में कहाँ पे आएगा वर्ड. तो पहले ही अगर मैं मीनिंग बता दूंगी तो टास्क इजी हो जाएगा. So I want you all to try to tell me the meaning as well as the opposite word. All these questions are there to check whether you have understood the lesson or not. First word is purvam, then gataha, dirgha, jagrutah, vrutyah, rasva. The word is rasva. Suptah, swami, dhanikah, पश्चात आगताहा, दरिद्रः. तो प्रज्ञा इज सेइंग पूर्वम को वो ऐसे कंसिडर कर रही है. प्रज्ञा की पूर्वम इज ईस्ट. सो प्रज्ञा विल गोइंग टू फाइंड आउट वेस्ट. तो ऐसे नहीं है. ईस्ट एंड वेस्ट ये अपोजिट पेयर यहाँ पे नहीं है. पूर्वम के लिए कुछ और ही मीनिंग है. अगर लेसन अच्छे से देखोगे तो याद आएगा. Yes, Pradnya, you have got the answer correctly. Also, many of you are giving me the correct answer. Correct, Advait ने भी perfect answer दिया है. Okay, चलो. तो फर्स्ट पेयर मुझे कौन बता रहा है? पूर्वम का अपोजिट विथ मीनिंग. Raise your hand. Yes, Shruti. Yes, miss. What is the opposite of Purvam? Pashtat. And meaning of both of them? Purvam means before, Pashtat means after. Very good. Fantastic, Shruti. Thank you so much. Yes.
तो पहला पेयर परफेक्ट बताया श्रुति ने हमें, पूर्वम का अपोजिट इज पश्चात, बिफोर एंड आफ्टर। तो ये वर्ड्स जो है, पूर्वम वर्ड जो है इन केस ऑफ बीरबल यूज किया था स्टोरी में। Before itself Birbal was done that particular arrangement of stick, तो इस वहां पे पूर्वम वर्ड यूज किया था। चलो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। गताहा का अपोजिट बताना है। वी वांट आंसर फॉर गताहा। यस तीर्थ, तीर्थ मैम आंसर फॉर गताहा। मैम आगताः। वेरी गुड। एंड मीनिंग ऑफ बोथ ऑफ देम? मैम गता means to go and agata means to come back. वेरी गुड, थैंक यू सो मच तीर्थ। तो Welcome, तीर्थ ने ma'am. करेक्ट बोला है। यस करेक्ट बोला है। सिर्फ यहाँ पे याद रखो कि गताहा एंड आगताहा आर पास्ट टेंस, क्योंकि हम स्टोरी देख रहे हैं जो बहुत ही पुरानी स्टोरी है बिरबल की। तो गताहा इज वेंट एंड आगता इज केम। गताहा वेंट एंड आगताहा केम। चलो वी वांट आंसर फॉर द थर्ड वन, दीर्घा। ऑल्सो वी वांट मीनिंग फॉर द सेम। Yes, Samina Darvi from Vikrori. Yes, ma'am. Dirgha is basically long and Raswa is short. So Dirgha Very Raswa. good, very good. Samina ने बहुत अच्छे से explain किया। दीर्घा is long, raswa is short, and both these words are used for stick in case of stick. So short stick and a long stick, raswa and dirgha. Very good. We want answer for the fourth one, jagrutah. Jagrutah. Yes, Kritika from Ghatkopar. Yes, Kritika, am I audible to you? Yes, ma'am. Yes. What is the answer for jagrutah? Kritika, Hello. can't hear you. Yes. What is the answer for jagrutah? Say it once again. Okay, शायद कृतिका ने करेक्ट आंसर बोला है। We are unable to hear you, Kritika. Very sorry. Let's give chance to Arman. Yes, Arman from DN Nagar. Hello, miss. What is the answer for jagrutah? Suptaha. Very good. And meaning of them? Jagruta means कोई भी लैंग्वेज में बोलो, no problem. Jagruta means progress and Suptaha is not progress. okay. ठीक है, thank you. तो अरमान को लग रहा है जागरूकता is progress and that supta is not progressing, ऐसे कुछ। तो थोड़ा सा हम इसको करेक्ट करेंगे। Who will correct it? Yes, let's give chance to Ayan. Ayan from DN Nagar. Yes, miss. जागरूकता and supta का मीनिंग क्या होगा? Miss, Jagrutaha means to be awake and Suptaha means to sleep. Very good, fantastic. And can you tell me the next opposite word for Bhrutyah? Bhrutyaha means servant and Swami means who has kept the servant. Yes, correct. So Swami is basically, you can say, the मालिक है उसका, Yes. या फिर ओनर। थैंक यू सो मच। तो अयान ने करेक्ट आंसर्स दिए। जागरूकः सुप्तः का मीनिंग है टू बी अवेक और सुप्त इज स्लेप्ट, एंड भृत्यः स्वामी इज सर्वेंट एंड मालिक और ओनर। चलो लेट्स मूव अहेड। अभी हमें सिर्फ
और एक वर्ड चाहिए, दैट इज धनिकः। धनिकः। तो आई होप द आंसर इज क्लियर। एक ही तो अभी वर्ड बाकी है, एंड दैट इज दरिद्रः। सो धनिकः मीन्स द वन हु हैज वेल्थ, वेल्दी, रिच पर्सन, एंड दरिद्रः यानी कि पुअर पर्सन। तो कुछ इस तरह से आपके आंसर्स दिखने चाहिए। क्विकली राइट इट डाउन। रस्वा का यहाँ पे देखो आंसर में जो स्पेलिंग है वो भी करेक्ट स्पेलिंग है। दैट स्पेलिंग इज इजी टू राइट डाउन। तो आप रस्वा का वो स्पेलिंग फॉलो करो जो आंसर में लिखा हुआ है इन रेड कलर। ग्रेट अद्वैत। अद्वैत हैज फिनिश्ड राइटिंग ऑल द आंसर्स, वेरी गुड। जिन्होंने भी आंसर्स लिखे हैं जस्ट चेक द स्पेलिंग्स, और जिन्होंने नहीं लिखे हैं क्विकली राइट डाउन द आंसर्स इन योर नोटबुक और टेक्स्ट बुक। I hope all of you are writing answers. Writing practice is important. हमें written paper देना है। पूर्वम, opposite, पश्चात. Don't forget to add that cross वाला sign in between both the words. See boards में cross वाला sign नहीं रहेगा, आपने गलती से dash या hyphen दे दिया तो 0 marks. So this cross signs means a lot. यही तो opposite word का identification है। Okay, so many of you are asking me for the syllabus of test 1. We'll discuss it in the next lecture. Okay, and also I'll guide you about the paper pattern and etc. So just now focus on the first lesson. और जितना भी अभी तक सिखा के हो गया जरा रिवाइज करते रहो, वही सब हमें टेस्ट 1 में आने वाला है। Okay, so I hope you have done with writing opposite words. Let's move ahead. We still have one more question in our textbook, which is पाठात् समानार्थक शब्दम चित्वा रेखा चित्रम पूरयत। तो अभी ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर आपको एग्जाम में आ रहे हैं तो रिमेंबर यू हैव टू ड्रॉ दीज पर्टिकुलर शेप्स इन योर क्वेश्चन आंसर पेपर। जैसे क्वेश्चन पेपर में शेप्स है वैसे ही आपको आंसर पेपर में शेप्स ड्रॉ करने हैं। ऐसा मत सोचना कि आपको सिर्फ एक वर्ड लिखना है डैश उसके साइड में जो भी समानार्थक यहाँ पे दिए हुए वो लिखना है, ऐसे नहीं होता है। इफ इट इज अ डायग्रामेटिकल क्वेश्चन डू सॉल्व इट एज इट इज, एंड अगर सिंपली समान अर्थ पूछे तो आप डैश करके हाइफन करके आंसर्स लिख सकते हो। तो चलो, द फर्स्ट वन इज धनाढ्यः, इभ्यः, धनसंपन्नः एंड धनवान। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 4 वर्ड्स दिए हुए, दीज आर द समानार्थक फॉर 1 वर्ड। तो बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, यस। So you can drop the word in chat box. Yashika has given the correct answer. Yes. Riya, Pradnya. Wow, that's great. The answer is धनिकः. Answer is धनिकः. अभी अभी हमने opposite word में भी ये word देखा था, धनिकः, rich man. तो rich man के लिए संस्कृत में देखो टोटल 5 words है, धनिकः which is in our lesson, then धनाढ्यः, इभ्यः, धनसंपन्नः and धनवान। सबका मीनिंग होता है rich man, धनिकः। चलो let's move ahead. The second question, स्थेनः, तस्करः, पाट्टचरः एंड मोशकः। तो यहाँ से स्थेनः से और तस्करः से, ये तो वर्ड हमने सुने रहेंगे, ये वर्ड से हमें पता चलता है कि द मीनिंग इज थीफ, एंड फॉर थीफ वी हैव वर्ड चौरः, नॉट चोरः, इट इज चौरः। च के ऊपर हमें 2 मात्रास देने हैं, देयर शुड बी 2 मात्रास, औ, चौरः, यस। So it is chaurah, र के बाद put विसर्ग। Also in धनिकः put विसर्ग। Don't draw the diagrams now. You can do it as a homework. Just write down words like chaurah, dash, stenah, pattacharah, moshakah, taskarah. Okay, third, ये जो particular activity दी गई है इससे आपके बहुत सारे
वर्ड्स लर्न हो जाते हैं तो वोकैबुलरी भी इंक्रीज हो रही है, सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। यस, सो सुक्ति ही, स्वपा, शयनम एंड स्वापह। सुक्ति ही से ही हमें पता चल जाता है कि इसका मीनिंग है यस टू टेक स्लीप। तो हमने ऐसा ही वर्ड एक देखा हुआ है, करेक्ट, निद्रा। सुप्तः नहीं, सुप्तः इज वर्ब, हमें यहाँ पे नाउन लिखना है स्टूडेंट्स। कुछ लोग सुप्तः बोल रहे हैं, विच इज वेरी रॉन्ग, इट इज वर्ब स्लेप्ट। निद्रा इज द करेक्ट वर्ड, निद्रा। एंड दो हमारे लेसन में निद्राम वर्ड है, डोंट राइट इट एज इट इज, राइट इट इन ओरिजिनल फॉर्म लाइक माला, इट इज निद्रा, निद्रा। सुप्ति ही, स्वपा, शयनम, स्वापह ऑल आर नाउन जिनका मीनिंग है स्लीप, and the answer is nidra. चलो let's move ahead to the last one. परिचारकः, सेवकः, चेटकः, किंकरः, दासः, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसका आंसर सेवकः से ही हमें पता चल जाता है, क्योंकि ये वर्ड भी हमने ऑलरेडी लेसन में देख लिया है। सो द आंसर इज भृत्यः। परफेक्ट, यू हैव स्पॉटेड इट करेक्टली, फैंटास्टिक स्टूडेंट्स। सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी। सो द आंसर इज भृत्यः। डोंट फॉरगेट टू ऐड द विसर्ग आफ्टर ईच एंड एवरी वर्ड एक्सेप्ट निद्रा। निद्रा को छोड़कर बाकी तीनों भी आंसर्स में पुट विसर्ग। ओके, तो यहाँ पे हमारा लेसन 1 कंप्लीट हो जाता है। अभी all the questions are covered in lecture, only one question is remaining and that is madhyama bhashaya uttaram likhat. madhyama bhashaya uttaram likhat is your homework. तो आज का होमवर्क क्या रहेगा? माध्यम भाषया उत्तरम लिखत। अब ये माध्यम भाषा क्या होता है वो थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ, सो यू कैन इजीली राइट डाउन द आंसर। जैसे आज आपने ट्राई किया कि स्टोरी का जिस्ट इंग्लिश में लिखना है या स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, वैसे ही आपको करना है, बट द डिफरेंस इज वहां पे जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करो, देन आपको 3 पार्ट्स में आंसर लिखना है। सी, अभी अच्छे से सुन लो, लिसन इट केयरफुली, नोट इट डाउन कि आंसर शुड बी इन 3 पैराग्राफ्स। फर्स्ट पैरा इज ओनली ऑफ 2 to 3 सेंटेंसेस। पहले पैरा में सिर्फ 2 से 3 वाक्य चाहिए। आई एम सेइंग वाक्य, नॉट लाइन्स। लाइन्स तो आपके हैंडराइटिंग के शेप और साइज के ऊपर डिपेंड है। आई वांट 2 to 3 सेंटेंस, मैक्सिमम 4, उसके आगे नहीं जाना है। तो 3 सेंटेंस में 3 वाक्य में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है इन फर्स्ट पैरा। इंट्रोडक्शन में लेसन का नाम आना चाहिए, दैट इज सुष्टु गृहीतः चौरः। एंड आपको एक्सप्लेन क्या करना है सेकेंड और थर्ड सेंटेंस में, यू हैव टू एक्सप्लेन द थीम ऑफ लेसन। जैसे कि ये लेसन बीरबल का क्लेवरनेस एक्सप्लेन करता है, or you can say the different method to caught the thief or anything। जैसे भी आपको ये लेसन का थीम लगा है, in your own words you have to explain the theme of lesson। Okay, so introduction में 2 parts रहेंगे, first name of the lesson and also the theme of the lesson। Let's go to second para। second para जो है वो almost 7 to 10 sentences का होगा, 7 से 10 वाक्य। इसमें आपको पूरा आंसर एक्सप्लेन करना है जो भी पूछा हुआ है। कि मे बी क्वेश्चन रहेगा कि बीरबल ने चोर को कैसे ढूंढा, उसका थियोरी क्या था, मेथड क्या था, कैसे उसको ढूंढा, क्या आइडिया लगाया, तो वो सब आपको 7 to 10 सेंटेंसेस में एक्सप्लेन करना है। ये हुआ आपका सेकेंड पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स एंड ऑल्सो इन इंग्लिश। तो कुछ डिफिकल्टी नहीं है वहां पे, बहुत सिंपल से आपको जो भी स्टोरी से समझाया, कैसे कैसे उसने फाइंड आउट किया, बस मेथड उसका जो स्टेप बाय स्टेप क्या क्या हुआ स्टोरी में लिखते जाओ, बट कम से कम वर्ड्स में आपको ज्यादा एक्सप्लेन करना है। एंड लेट्स मूव अहेड टू द लास्ट पैरा विच इज ओनली ऑफ 1 to 2 सेंटेंसेस। 1 से 2 वाक्य में ही हमें लास्ट का पैरा एंड करना है, विच इज अ सम अप, वाइंडिंग अप योर आंसर इन द लास्ट पैरा। तो बेसिकली आपको व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये आपको एंडिंग में लिखना है। आपने क्या सीखा,
that will be, so last paragraph you can say it is your personal opinion, personal response to the question कि आपको स्टोरी से क्या समझा, बिरबल का क्लेवरनेस समझा, या चोर जैसे हमें भी चोरी करनी चाहिए, उसकी जैसी आइडियाज लगानी चाहिए, ओवर स्मार्ट बनना चाहिए, ये समझा, पॉजिटिव एंड निगेटिव वे. सो आई होप यू ऑल आर स्मार्ट इनफ कि आप पॉजिटिव वे से ही लिखोगे आंसर. ओके, सो ओनली वन पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, दैट इज माध्यम भाषा उत्तरम लिखा था. वो एक्चुअली पर्सनल रिस्पॉन्स नहीं होता है, जस्ट टू चेक कि आपको इंग्लिश में लेसन का अंडरस्टैंडिंग हुआ है कि नहीं हुआ है. सो आई होप क्लियर है होमवर्क. एक ही क्वेश्चन लिखना है बस जो आपके टेक्स्ट बुक में है. माध्यम भाषया उत्तरम लिखत, बिलो कह कम वदति. Someone is saying कि स्कूल ने बोला 8 to 10 लाइन्स में आंसर लिखना है. 8 to 10 लाइन्स मतलब 8 to 10 सेंटेंसेस. ओके, सो सिर्फ 2 मार्क के लिए आपको आंसर लिखना है, तो लेंथ मैटर नहीं करता है. व्हाट मैटर इज योर कंटेंट. आप कितना ब्यूटीफुली उसको एक्सप्लेन करते हो स्टोरी को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि आर्या का आंसर हमने स्टार्टिंग में ही देखा, तो उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था. बीच बीच में उसने कनेक्टिंग लाइन्स ऐड किए थे, सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं लिखा था. तो दैट इज एक्सपेक्टेड इन माध्यम भाषा उत्तरम लिखत. विल डिस्कस योर आंसर्स इन नेक्स्ट लेक्चर. 4 to 5 people I will tell you to give your answers. So हमें समझ में आएगा कि कैसे माध्यम भाषा लिखना है. Okay, so thank you so much students. We'll stop here and we'll continue in the next lecture. Till then, stay tuned. Bye bye.